ایک ایسا دور جب زمین پر ہدایت کا نور مدھم پڑ گیا تھا اور شیطان نے انسانوں کو ایک ایسے خوفناک فریب میں مبتلا کر دیا تھا جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ایک بہت بڑا مجسمہ جس کی چمک اور ہیبت نے طاقتور بادشاہوں اور عام لوگوں کی آنکھوں پر اندھے پن کی پٹی باندھ دی تھی۔ وہ کوئی عام بت نہیں تھا، وہ بال تھا، شیطان کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار جسے طاقت، بارش اور زرخیزی کا خدا مان لیا گیا۔ لیکن یہ بال آخر تھا کون؟ اس کی پوجا کا آغاز کب، کیسے اور کس نے کیا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس سرکش قوم کی طرف کیسے مبعوث فرمایا؟ ایسے ہزاروں سال پہلے شام کے علاقے میں، جسے آج ہم لبنان، شام اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، وہاں ایک نہایت سرسبز اور شاداب علاقہ آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی، بہتے چشموں اور لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس علاقے میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا جسے اس وقت کے لوگ بک کہا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، لیکن خوشحالی جب حد سے بڑھ جائے اور دلوں میں اللہ کا شکر نہ رہے تو وہاں شیطان کا داخلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس قوم کے پاس سب کچھ ہے، زمینیں سونا اگلتی ہیں اور آسمان سے وقت پر بارش برستی ہے۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ اہل شہر نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بے پناہ بڑا اور خوفناک مجسمہ تعمیر کیا۔ یہ خالص سونے اور قیمتی دھاتوں سے بنایا گیا ایک دیو ہیکل بت تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنائے گئے تھے اور اسے انتہائی شاندار انداز میں ایک اونچی جگہ پر نصب کیا گیا تاکہ دور دور سے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہی بال بارش برسانے والا خدا ہے، یہی زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اسی کے غصے کی وجہ سے قحط پڑتا ہے۔ شیطان کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس بت کی پوجا اتنی بڑھ گئی کہ اس پورے شہر کا نام ہی اس بت کی نسبت سے بدل دیا گیا۔ شہر بک کو اب بال بک کہا جانے لگا، یعنی بال کا شہر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی لبنان میں اس شہر کا نام بالبک ہی ہے اور اس کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ بلکہ پجاریوں نے معاشرے میں ایک عجیب ظالمانہ نظام قائم کر لیا تھا۔ بادشاہ سے لے کر عام کسان تک سب اس سونے کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ بل کے نام پر جانوروں کی اور بعض تاریخی روایات کے مطابق انسانوں تک کی قربانیاں دی جانے لگیں۔ معاشرہ ظلم، جبر اور شرک کی تاریکیوں میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ وہ اپنے سچے رب کو بالکل بھول چکے تھے جس نے ان کے باپ دادا کو پیدا کیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ بیل ہی ان کی کائنات چلا رہا ہے۔ جب گمراہی اپنی تمام حدیں پار کر گئی اور زمین پر شرک کا اندھیرا چھا گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ پاک نے اس بھٹکی ہوئی اور سرکش قوم کی طرف اپنے ایک نہایت جلیل القدر اور عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے طوفان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام اکیلے اس پوری قوم، ان کے جابر بادشاہ اور بال کے طاقتور پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور دلسوزی کے ساتھ ان کو دعوت حق دی۔ آپ علیہ السلام کی اس عظیم دعوت کا ذکر قرآن مجید نے سورہ الصافات میں انتہائی خوبصورت اور واضح انداز میں کیا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اس رب کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو جو خود تمہارا محتاج ہے۔ کیا تم سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو، سب سے عظیم خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے ان باپ دادا کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔
हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की यह पुरअसर और सच्ची आवाज जब इस मुआशरे में गूंजी तो बाल के पुजारियों के ईवानों में जलजला आ गया। इनके जाबिर बादशाह और ताकत के नशे में अंधे सरदारों को यह बात किसी सूरत कबूल नहीं थी कि कोई एक शख्स आकर इनके दीवता को झूठा कहे और इनके सदियों पुराने रस्म और रिवाज को बातिल करार दे। इस वक्त का बादशाह और इसकी बीवी जो बाल की कट्टर पुजारन थी, उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालफत शुरू कर दी। वह ताकत के नशे में इस कदर अंधे हो चुके थे कि यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनके सोने और चांदी से बने इस अजीमुल शान दीवता की दरहकीकत कोई हैसियत नहीं है। कौम ने अपने नबी की बात मानने के बजाय इनको धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अपने शहर से निकालने और जान से मारने की साजिशें रचना शुरू कर दी। अल्लाह ने फैसला फरमाया कि जिस झूठे दीवता की ताकत पर यह कौम इतना गुरूर कर रही है, इसी की बेबसी आज इनकी आंखों के सामने लाई जाए। अल्लाह की तरफ से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को यह वही हुई कि वह इस सरकश कौम के बीच से निकलकर एक महफूज मकाम पर हिजरत कर जाईं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इन बस्तियों से निकलकर पहाड़ों और गारों की तरफ चले गए और पीछे इस मगरूर कौम पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने इनकी सारी चमक दमक खाक में मिला दी। बल्कि पुजारियों का सबसे बड़ा दवे यह था कि इनका मुजस्समा बल बारिश का खुदा है। अल्लाह ने इसी शिर्क को बातिल साबित करने के लिए आसमान को हुक्म दिया कि इस कौम पर बारिश का एक कतरा भी न बरसे। देखते ही देखते वह इलाका जो अपनी बेपनाह जरखीजी, बहते मीठे चश्मों और हरे भरे बागात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, एक खुश्क और बंजर सहरा में तब्दील होने लगा। एक साल गुजरा, आसमान से बादलों का कोई टुकड़ा न गुजरा। दूसरा साल गुजरा, जमीन प्यास से फटना शुरू हो गई, चश्मे खुशक हो गए और खेतों में उगने वाली फसलें सूख कर राख का ढीर बन गई। तीसरा साल आते आते इस पूरी कौम पर एक हौलनाक कहर मुसल्लत हो गया। वह लोग जिनके पास अनाज के भरे हुए गोदाम थे, आज वह दाने दाने को तरसने लगे और इनके जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। यह वह वक्त था जब बैल के पुजारी दीवानावार अपने सोने के मुजस्समे के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने अपने झूठे दीवता के सामने दिन रात सजदे किए, तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाए और रो रो कर मिन्नतें मांगे कि आसमान से पानी बरसे। लेकिन भला पत्थर और धात के बने हुए बेजान बुत किया सुन सकते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इस खौफनाक कैद में तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस बस्ती में इंसान और जानवर भूख व प्यास से मर रहे थे, वहां अल्लाह ने अपने नबी की खुराक का गैबी इंतजाम फरमाया। घर में क़याम के दौरान इन्हें अल्लाह की तरफ से रिज्क मिलता रहा क्योंकि अल्लाह अपने नेक और सच्चे बंदों की हिफाजत करना खूब जानता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इस कौम की सरकशी और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई को बड़ी सराहत के साथ बयान किया है। सूरह साफ़ात में अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि उन्होंने इलियास को झुटलाया तो बेशक वह अजाब में पकड़े हुए हाजिर किए जाएंगे सिवाय अल्लाह के इन बंदों के जिन्हें चुन लिया गया। इस आयत में इस कौम के भयानक अंजाम की तरफ खुली दलील है कि जिन्होंने अपने सच्चे खालिक को छोड़कर शैतान के बनाए हुए बुतबाल को पुकारा, इनका अंजाम दुनिया में भी रुसवाई था और इनके लिए सख्त अजाब मुकर्रर कर दिया गया। गत की इस हौलनाक शिद्दत ने कौम के तकब्बुर को रीजा रीजा कर दिया। जब मौत इनके दरवाजों पर दस्तक देने लगी और इनका खुदा बाल इन्हें बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, तो इनमें से कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा कि वाकई वह एक बहुत बड़े धोखे और शैतानी जाल में फंस चुके हैं। शैतान का वह तिलिस्म जो उसने इस मुजस्समे की सूरत में बांधा था, अब बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। इन पर यह हकीकत खुलने लगी थी कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा रब है
कैता और खुश्क साली के इन 3 तवील और खौफनाक सालों ने आखिर कारबाल के पुजारियों का गुरूर खाक में मिला दिया। जब भूख और प्यास ने इनकी बस्तियों को मौत के घाट उतारना शुरू किया तो इन पर यह हकीकत पूरी तरह आश्कार हो गई कि इनका देवता बिल्कुल बेबस है। वह सोने का दियो हैकल मुजस्समा जिसे वह कायनात का निजाम चलाने वाला समझते थे, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखता था। आसमान से बारिश बरसाना तो बहुत दूर की बात थी। तारीख बताती है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई सबके सामने आया हो गई। हक वादिह हो गया और बातिल का सर हमेशा के लिए झुक गया। बल्कि पूजा करने वाले जलील व ख्वार हुए और वह अजीम शान बुत जिसके सामने कभी मुतकब्बिर बादशाह सजदा करते थे, अपनी तमाम तर चमक दमक के बावजूद जमीन बोस हो गया। अल्लाह की कुदरत और इसके सच्चे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से बिलाखिर आसमान से रहमत की बारिश बरसी। लेकिन यह बारिश सिर्फ इन लोगों के लिए हिदायत और जिंदगी लेकर आई जिन्होंने सच्चे रब को पहचान कर तौबा कर ली थी। बालबक का वह ताकतवर बादशाह, इसकी जालिम बीवी और इसके मगरूर सरदार सब इबरत का भयानक निशान बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शैतान, जिसने रोज़े अव्वल से इंसान को गुमराह करने की कसम खा रखी है, उसने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। बल का मुजस्समा तो टूट गया और मिट्टी में मिल गया, लेकिन शैतान ने गुमराही की इस सोच को मरने नहीं दिया। इब्लीस ने यह जान लिया था कि शायद अब इंसान किसी पत्थर या सोने के मुजस्समे के सामने इस तरह एलानिया सजदा न करे। इसलिए उसने इंसान को भटकाने का अपना तरीका कार मुकम्मल तौर पर बदल लिया। शैतान ने अपने पुजारियों को छुपकर तारीकियों में काम करने का रास्ता दिखाया और बिल्कुल यहीं से इन खुफिया ताकतों और शैतानी तंजीमों का आगाज हुआ, जिन्हें आज की दुनिया में हम पोशीदा हुकूमतें, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स या शैतानी हल्के, सैटानिक कल्ट्स कहते हैं। आज के इस बज़ाहिर पढ़े लिखे और इंतहाई जदीद दौर में अगर कोई यह समझता है कि बाल की तारीख पुरानी हो चुकी है और शैतान की पूजा खत्म हो गई है, तो यह हमारी सबसे बड़ी और खतरनाक भूल है। हकीकत तो यह है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग और निहायत ताकतवर खुफिया तंजीमें मौजूद हैं जो इंतहाई बाकायदगी के साथ शैतान की पूजा करती हैं। या लोग आज के दौर के बाल के पुजारी हैं, या वह लोग हैं जो दुनिया के माशी निज़ाम, आलमी सियासत और मीडिया की ताकत पर मुकम्मल तौर पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने आज मादी ताकत, बेतहाशा दौलत, बेहयाई और फहाशी को अपना नया दीवता बना लिया है। इन खुफिया ताकतों का असल मकसद आज भी बिल्कुल वही है जो हजारों साल पहले शाम के इलाके में था, यानी इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाना, इसके दिल से आखिरत का खौफ निकालना और इसे शैतान का गुलाम बनाना। यह लोग आज भी अपनी खुफिया और अंधेरी महफिलों में शैतान को खुश करने के लिए वही पुरानी जालिमाना रस्में अदा करते हैं और इन्हें शैतानी अलामतों का इस्तेमाल करते हैं जो कदीम दौर में बाल के पुजारी किया करते थे। ज़ेंगों वाले देवता की तस्वीरें, एक आंख का निशान और ऐसे बेशुमार शैतानी अलामत आज भी इन खुफिया ताकतों की पहचान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का बाल कोई एक धात का मुजस्समा नहीं है, बल्कि यह वह पूरा दिलफरेब शैतानी निज़ाम है जो निहायत खामोशी से हमारे इर्द गिर्द बच्चा दिया गया है। हमारे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, फिल्मों और मीडिया के जरिए यह खुफिया ताकतें हमारे मुआशरे और ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्लों के ज़हनों को कंट्रोल कर रही है। यह ताकतें निहायत मंसूबाबंदी के साथ हमें हमारे दीन, कुरान मजीद और सुन्नत रसूल से दूर करके एक ऐसे तबाह कुन रास्ते पर धकील रही हैं जिसकी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग है। आज के शैतानी पुजारियों ने इंसान के दिल से इसके सच्चे खालिक का तसव्वुर मिटाने के लिए हर वह जदीद और नफसियाती हथकंडा इस्तेमाल किया है जो इब्लीस ने इन्हें सिखाया है। वह दुनिया को यह झूठा सबक पढ़ा रहे हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, वह खुद अपना खुदा है और इसे किसी आसमानी किताब या हिदायत की कोई ज़रूरत नहीं।
یا بائیں وہی تکبر اور وہی سوچ ہے جس نے بال بک کے لوگوں کو تباہی کے گھاٹ اتارا تھا۔ تاریخ در حقیقت آج پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کل انسان کے سامنے بل کا بت تھا اور اسے بچانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کی سچی اور حق پر مبنی آواز تھی۔ آج ہمارے سامنے یہ نہایت طاقتور خفیہ شیطانی قوتیں اور ان کا بچھایا ہوا فریب کا جال ہے، لیکن ہمارے پاس اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے اللہ کی آخری اور سچی کتاب قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور مبارک سنت ہر وقت موجود ہے۔